students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is light and sound. You will be aware about light, luminous and non-luminous objects, shadow, sound. We are familiar with light as sunlight, moonlight, tube light, torch light, etc. Light coming from these sources enables us to see the things. Without light, everything looks dark. अब आपकी जो आसपास की चीज़ें हैं वो आपको आंखों की वजह से तो दिखाई देती ही हैं. इसके अलावा कैसे दिखाई देती हैं? लाइट की वजह से. अभी आपकी सनलाइट हो सकती है, ट्यूब लाइट, टॉर्च लाइट, किसी भी तरीके की लाइट. अब आपकी आंखें बराबर काम कर रही हैं लेकिन अंधेरा है हर जगह, किसी भी चीज़ पे कोई लाइट नहीं पड़ रही है तो आपको चीज़ें दिखाई नहीं देगी. लेट्स स्टडी अबाउट लाइट. Light is a form of energy that allows us to see the things around us. When it falls on other objects, a part of it bounces back, reaching our eyes and gives us a sensation of visibility. कैसे दिखाई देता है आपका? लाइट आपकी एक एनर्जी की तरह काम करती है. जिस ऑब्जेक्ट पे ये पड़ती है, बाउंस बैक करती है आंखों पे और आपको वो चीज़ दिखाई देना शुरू हो जाती है. Now let's see what are the sources of light. We receive light from many sources. Sources of light can be of two types. पहला है natural sources of light. Sun, moon, stars are natural sources of light. The sun is the ultimate source of light on earth. Natural sources कौन से होते हैं आपके? sun, moon और stars. जिसमें से कि moon जो है उसकी natural light नहीं होती है, sun की light उस पर पड़ती है तो आपको moon दिखाई देता है. अब इसमें से जो बिल्कुल ultimate main source है आपकी light का earth पे वो है sun. Second is man-made or artificial sources of light. Bulb, tube light, LED, CFL, दिया, candle, lamp, etc. are some artificial or man-made sources of light. आपके आसपास आपके कमरों में जो lights है, candles है, दियाज हैं, किसी भी टाइप का man-made light है. ये कैसा light है? Artificial light है, यानी कि इंसान ने बनाया है. Now let's study about luminous and non-luminous objects. An object that gives out light is called a luminous object. For example, sun, star, bulb, diya, candle, etc. are some luminous objects. अब जिन भी चीज़ों से आपकी light emit होती है, natural form में या artificial तरीकों से, वो आपके luminous objects होते हैं, जैसे sun, star, bulb, दिया. ये सारे आपके luminous objects हैं because they emit out light. On the other hand, chair, pen, table, bag, notebook, kite, etc. do not give out light. Thus, such objects are called non-luminous objects. अब आपकी books हो गई, furniture हो गया, इस पे जब कोई light पड़ती है तो आपको ये दिखाई देना शुरू करते हैं. Hence, these are non-luminous objects. However, when light from a luminous object falls on non-luminous object, we can see it. किसी भी luminous object से यानी कि light emitting object से non-luminous यानी कि non-emitting object से आपकी उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो आपको वो चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल बल्ब की जो लाइट है वो फर्नीचर पे पड़ती है तो आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है. शैडो. You must have seen dark patch behind you which looks like you, moves with you everywhere. Whenever you walk in the sun or any other sources of light, this dark patch is your shadow. अब कभी भी आप लाइट में जब मूव करते हैं तो आप देखेंगे आपके पीछे हमेशा एक डार्क पैच आपके साथ मूव करता रहता है, जैसे इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है. What is this dark patch? This is the shadow. परछाई जिसे हिंदी में कहते हैं. Shadow is formed when an opaque object blocks the path of light. It is always formed on the opposite side of the light source. ये कब होता है? shadow कब आपका पड़ता है? जब लाइट और किसी भी सरफेस के बीच में एक ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है. जैसे अगर कोई भी सनलाइट है, सनलाइट का रास्ता आप ब्लॉक करते हैं प्रॉपर नीचे ग्राउंड तक पहुंचने में, उसके बीच में अगर आप आ जाते हैं तो इस तरीके की शैडो आपकी फॉर्म करने लग जाती है. और हमेशा जो शैडो होती है वो लाइट सोर्स के ऑपोजिट फॉर्म करती है. अगर यहाँ पर आपकी एक ए पॉइंट पे अगर आपका लाइट सोर्स है, यहाँ पर आपका ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो शैडो हमेशा इसके ऑपोजिट पड़ेगी. Shadow of a same thing can be bigger than the actual size or smaller than the actual size. Size of a shadow depends upon the distance between light source of the object. Greater the distance, longer is the shadow, or smaller the distance, shorter is the shadow. अब shadow जो होती है actual object से छोटी और बड़ी हो सकती है, depend करता है कि जो light distance travel कर रही है या opaque object और light के बीच में जो distance है वो छोटा है या फिर ज़्यादा है. Learn with fun.
राइट वेदर द गिवन थिंग्स आर लूमिनस और नॉन लूमिनस। अब आपके सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको बताना है लूमिनस कौन सा है। लूमिनस मतलब जिससे लाइट एमिट होती है, और नॉन लूमिनस बताना है जिसमें से लाइट एमिट नहीं होती है। वो आपको तभी दिखाई देते हैं जब उनके ऊपर कोई लाइट पड़ती है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट साउंड। You hear a lot of sounds from day-to-day life. Even many things are recognized by their sound. For example, sound of bell, your school, that of a temple is different. अब आप बहुत सारी अलग अलग तरीकों की आवाज़ें सुनते हैं। आपके स्कूल में जो घंटी बजती है और जो आपके आसपास मंदिर में जो बेल बजती है, उसकी जो साउंड होती है वो डिफरेंट होती है। ऑब्जेक्ट सेम है बट साउंड अलग है। Sound is a medium of conversation for us. When we talk, we make a kind of sound which is heard by another person. Sound needs medium to travel from one place to another. अब sound क्या है? It is a medium of conversation. अगर मैं बोल रही हूँ, अगर कोई साउंड मैं प्रोड्यूस नहीं करूँगी, सिर्फ अपने लिप्स हिलाती रहूँगी, तो आपको सुनाई नहीं देगा। तो साउंड जब ट्रैवल करती है तो वो आपको सुनाई देती है। सो इट इज अ काइंड ऑफ मीडियम विच एक्ट्स फॉर द कॉन्वर्सेशन। मोर टू नो, sound travels through air. There is no air on the moon, so if you shout there, no one can hear you. अब साउंड को ट्रैवल करने के लिए हमेशा एयर की जरूरत होती है। अगर एयर प्रेजेंट नहीं होगा तो आपको आवाज सुनाई नहीं देगी। मून पे कोई भी एयर नहीं है तो वहां पे आप जितना चिल्लाना है चिल्लाइए, किसी को कुछ भी सुनाई नहीं देगा। Some sounds are soft like whisper, while some are loud like sound of a call bell. Some sounds are pleasant to hear like music, while some sounds are very unpleasant for us like honking horns of vehicles, screaming people, etc. अब साउंड्स आपकी अलग अलग टाइप की होती है। कुछ बहुत सॉफ्ट होती है, सुनने में अच्छा लगता है, जैसे कि आपका म्यूजिक हो गया। ऑन दी अदर हैंड, लोग जब बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, चिल्ला कर बातें करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट होता है। नॉइज। What happens in your class when teacher is not present? Everyone starts talking in their own tone at the same time. What happens when all the vehicles on a heavy traffic road start honking at the same time? क्लास में टीचर 2 मिनट के लिए गायब होती है तो सारे बच्चे अपनी अपनी टोन में बातें करना शुरू कर जाते हैं। What is this? This is noise. अब रास्ते पे बहुत सारी गाड़ी चलती हैं, सब अगर एक साथ अननेसेसरीली हॉर्न बजाएंगे तो उससे भी क्या होता है? नॉइज, शोर प्रोड्यूस होता है। The two given situations make a loud and unpleasant sound. This loud and unpleasant sound is called noise. Too much noise disturbs us and is bad for our health. अब ये जो आपके दोनों situations ऊपर थे, इसमें बहुत unpleasant और तेज की आवाज आती है। ये बहुत ही ज़्यादा unpleasant तो है ही, irritating भी है, इसके साथ साथ आपके health के लिए भी अच्छा नहीं होता है। So we should always think of our family members and neighbors before watching TV, listening music, etc. at high volume. अपने घरों के अंदर, आप अपने घरों में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आसपास के लोगों के लिए इनकन्वीनियंस पैदा कर देंगे। म्यूजिक आपको सुनना है, टीवी आपको देखना है, तो उतनी म्यूजिक पे ही सुनिए जितना कि आपको सुनाई दे रहा है। बाहर तक उसकी आवाज़ पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। टर्म्स टू लर्न। Light, a form of energy required for seeing objects. Luminous objects, objects that give out light. Non-luminous objects, objects that do not give out light. Shadow, a dark patch formed when an opaque object blocks the light. Noise, loud and unpleasant sound. Light, जो इससे आपको चीज़ें दिखाई देती हैं। लूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जिसमें से लाइट एमिट होती है। नॉन लूमिनस, जिसमें लाइट एमिट नहीं होती है। शैडो, जब लाइट और किसी भी सरफेस के बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो एक डार्क पैच फॉर्म हो जाता है, जिसे हिंदी में परछाई बोलते हैं। एंड नॉइज, लाउड और अनप्लेजेंट साउंड होती है, जो कि बहुत इरिटेटिंग तो होती है, प्लस आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आप खुद से करिए।